Good morning, students. First of all, you all are welcome to your new class in class 6. I am here to start your first chapter in English textbook. Title of this chapter is Installments for Installments. Before watching this video, I would like to suggest you all, please read this chapter carefully and make a proper list of hard word with their meanings in your notebook. As the title of this chapter is Installments for Installments. First of all, we should understand what is installment. Installment is a portion of debt to be paid on time. In Hindi, किस्त. Okay. Installments for installments means debt to be taken for payment of installment. In simple language, suppose a person takes debt but he is unable to pay his installment on time, and for paying installment he has to take debt once again. In short, in Hindi, कर्ज को पूरा करने के लिए कर्ज लेना. We can say that installments for installments. Therefore, my dear students, it is very important to save money for future use. Saving money can help you become financially secure and provide a safety in case of emergency. यदि आप मनी सेव करते हैं तो जब इमरजेंसी का कोई भी केस होता है तो उस समय वो मनी आपको हेल्प करेगा. सो इट इज़ आवर नेसेसिटी टू सेव मनी. समटाइम्स इट इज़ वेरी टफ टू स्टार्ट सेविंग मनी. हम लोग को मनी कैसे सेव करेंगे, वो कैसे शुरुआत करेंगे मनी सेव करना, ये थोड़ा सा टफ होता है हम लोगों के लिए. बट देर इज़ नो नीड टू वरी. चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप बाय स्टेप एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी यू मे स्टार्ट टू सेव मनी. आप मनी को सेव करना स्टार्ट कर दीजिएगा. फर्स्ट वन, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड. You have to determine to save some money for emergency purpose every month out of your pocket money. आपको इमरजेंसी के लिए हर एक महीने अपने पॉकेट मनी से कुछ न कुछ सेव करना है. नेक्स्ट, establish your budget. You have to decide fixed amount for different purposes. It will certainly help you to save some amount. किन किन चीज़ों पर कितना खर्च करना है इसकी प्लानिंग पहले ही कर लेना है और उसी हिसाब से खर्च करना है, तब आप कुछ न कुछ पैसे को सेव कर सकते हैं. यूज़ अ पिग्गी बैंक. You have to develop a habit to put your left coins in your piggy bank which you usually keep in your pocket. कभी कभी आप मार्केट जाते हो तो कुछ सामान खरीदते हो तो कुछ ना कुछ चेंज पैसा 1 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन बच जाता है, तो उसको आप अपने पॉकेट में रखते हो और अननेसेसरी उसको कभी खर्च कर देते हो. तो आप एक हैबिट डेवलप करो कि उस 1 रुपी कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन को हम पिग्गी बैंक में डालें. Okay, you usually spend your coins, but when you put your coins in piggy bank, it will give you comparatively larger amount in emergency. और वही पिग्गी बैंक जब कभी कोई इमरजेंसी होगा तो आप उस पिग्गी बैंक से एक अच्छा अमाउंट आपके पास हो जाएगा, जिससे कि आप उस इमरजेंसी में उस अमाउंट को, उस मनी को खर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट, make a saving plan and try to make it true. Next,
Be sincere in your work. Be sincere in your work. It is very important. It is very important. If you will be sincere in your work, if you will be sincere in your work, certainly you need not to pay extra for your lackings. In this way you will save your money. आप अपने काम के प्रति सिंसियर रहें, इससे आपके एक्स्ट्रा खर्च में कमी होगी और आप पैसे बचा सकते हैं. नेक्स्ट, यूज़ होममेड आइटम्स. यूज़ होममेड आइटम्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ होममेड आइटम्स. It will reduce your extra expenditure and you will be able to save money. यदि आप घर में बने सामान का यूज़ करते हैं तो आप पैसे को बचा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इससे एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वो आपका कम होगा और पैसे बचा सकते हैं. Now come to the story. Now come to the story. In this story there are 3 characters only. In this story you will find that there are 3 characters only. Number 1, Bill. He is playing a role of husband here. Bill. Number 2, Susan, Bill's wife. And number 3, Aunt Polly. Aunt Polly who visits Bill's house. Aunt Polly जो कि बिल के घर आती है. Now come to the story. Aunt Polly came to the house of Bill and Susan. Aunt Polly कहाँ आती है? बिल और सुसान के घर आती है. Bill told her about everything in the house he had bought in easy installments. Aunt Polly के घर आने के बाद बिल क्या करता है? उसके घर में जितना भी सामान होता है जो कि वो खरीदा हुआ होता है इंस्टॉलमेंट पे, उस सब के बारे में आंट पॉली को बताता है. सी इन द पिक्चर, आंट पॉली, दिस इज आवर सिटिंग रूम. आंट पॉली को बताता है कि दिस इज आवर सिटिंग रूम. दिस इज आवर सिटिंग रूम. ओके, सिटिंग रूम. व्हाट इज सिटिंग रूम? अ रूम इन अ हाउस इन विच पीपल कैन सिट डाउन एंड रिलैक्स. घर में वो एक जगह होता है जहाँ सोफ़ा वगैरह रखा रहता है, जहाँ पे आदमी बैठ के रिलैक्स करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटिंग रूम बोलते हैं. तो वो अपने सिटिंग रूम को दिखाता है आंट पॉली. दिस इज़ आवर सिटिंग रूम. आंट पॉलीज रिएक्शन. अब देखो आंट पॉली का क्या रिएक्शन है. व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल रूम. व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल रूम. वाओ, कितना सुंदर और कंफर्टेबल रूम है. स्मॉल बट हैविंग ऑल टाइप ऑफ प्रिटी फर्नीचर. स्मॉल बट हैव ऑल टाइप ऑफ प्रिटी फर्नीचर. छोटा है बट इसमें जो भी फर्नीचर है वो बहुत ही सुंदर है. नेक्स्ट, सुसान कम्स फॉरवर्ड. सुसान आगे बढ़ता है. आंट पॉली सेज, वी हैड ओनली रेडियोग्राम्स इन आवर डेज. हमारे समय में सिर्फ रेडियोग्राम्स होता था. हमारे पास क्या था? सिर्फ रेडियोग्राम्स था. रेडियोग्राम्स मीन्स जिसमें रेडियो का भी फंक्शन हो और म्यूज़िक प्ले करने का भी फंक्शन हो और स्पीकर उसमें ही सेट रहता है. इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियोग्राम्स. रेडियोग्राम्स अ कंबाइंड रेडियो एंड रिकॉर्ड प्लेयर बिल्ट इन अ कैबिनेट विथ अ स्पीकर. ओके, रेडियोग्राम्स. यस आंट पॉली, वी लव इट. वी ऑफन सिट हियर एंड वॉच फिल्म्स ऑन द एलईडी. मैं यहाँ पे बैठ के एलईडी पे फिल्म्स देखता हूँ. वी ऑल्सो हैव नाउ Bill says, we also have a stereo system in this corner. See, इस कॉर्नर में हमारे पास एक स्टेरियो सिस्टम भी है. स्टेरियो सिस्टम मीन्स म्यूजिक सिस्टम. We have extra speakers fitted in the kitchen and the bedroom. सुशान says कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पीकर्स जो है हम अपने किचन में और बेडरूम में सेट करवाए हुए हैं. Aunt Polly came out to the balcony. Aunt Polly कैम आउट टू द बालकनी. वो वहाँ से निकल के कहाँ आ जाती है? बालकनी में आ जाती है. तो वो उसकी नज़र कहाँ पे पड़ती है? पियानो पर. वाई हैव यू पुट द पियानो इन द बालकनी. तुमने पियानो को बालकनी में क्यों रखा है? बिल सेज, वी पुट इट देयर बिकॉज दिस रूम इज स्मॉल. मैंने उसको बाहर रखा क्योंकि रूम जो है छोटा. नाउ
Bill requested to Aunt Polly, please sit down. And Susan also, did you like our new house? क्या आपने मेरे नए घर को पसंद किया? Aunt Polly smiled and said, थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, वंडरफुल माई डियर्स, बहुत अच्छा. यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है. आई ऑल्सो सॉ एन एक्सपेंसिव कार इन द पॉर्च, मैंने एक बहुत ही महंगी कार भी देखी है तुम्हारे पॉर्च. पॉर्च मीन्स बरामदा, वी कैन से दैट पॉर्च मीन्स बरामदा. ओके, या वी कैन से दैट पॉर्च मीन्स अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग, अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग. ओके, पोर्टिको जिसको कहते हैं, कह सकते हैं पॉर्च को हम पोर्टिको. ओके, नेक्स्ट, कॉस्टली आईफोन इन योर हैंड, न्यू फ्रिज इन द किचन, पियानो इन द बालकनी, एलईडी इन द लिविंग रूम एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर. हु सेज? Aunt Polly says to both of them, you have costly iPhone in your hand, you have new fridge in your kitchen, you have piano in the balcony, you have LED in the living room and beautiful furniture. Susan came with a tray. Susan came with a tray. Susan एक ट्रे के साथ आती है. What would you like, Aunt Polly? Hot coffee or cold cola? आप क्या पसंद करती है Aunt Polly? Hot coffee or cold cola? Aunt Polly says, your house is very lovely. Your house is very lovely. तुम्हारा घर जो है बहुत सुंदर है. How much rent do you pay for it? इस घर के लिए कितना रेंट तुम पे करते हो? Bill says, no rent, Aunt Polly. कोई भी रेंट नहीं. We have bought this house. हम लोगों ने इस घर को खरीदा है. हम लोगों ने इस घर को खरीदा है. Aunt Polly was surprised. Aunt Polly was surprised. बाउट, आश्चर्यचकित होकर पूछती है. बाउट मीन्स खरीदे हो. हाउ डिड यू मैनेज इट ऑल, तुमने कैसे ये सब मैनेज किया? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुमने कैसे ये मैनेज किया. बिल सेज, वी डिड इट, मैंने कर लिया. वी जस्ट पेड $100 एंड हाउस वाज आवर्स, मैंने सिर्फ $100 को पे किया और ये घर हमारा हो गया. हम लोगों ने सिर्फ $100 पे किया और ये घर हमारा हो गया. बट आई जस्ट गेव यू $500 चेक एज वेडिंग प्रेजेंट, लेकिन हमने तो तुम्हारे वेडिंग प्रेजेंट में सिर्फ $500 ही दिया था. $500 का ही चेक तुम लोग को दिया था वेडिंग प्रेजेंट में. शादी के समय हमने जो तुमको गिफ्ट दिया था वो क्या दिया था? सिर्फ $500 का ही चेक दिया था. यस आंट पोली, हाँ आपने दिया था. बाइंग अ हाउस इज चीपर. यस आंट पोली, बाइंग अ हाउस इज चीपर देन पेइंग मंथली रेंट. हाँ आंट पोली, एक घर को खरीदना सस्ता है मंथली रेंट देने के बजाय. मंथली रेंट देने से एक घर को खरीदना सस्ता है. वी जस्ट हैव टू पे अ फ्यू क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, हम लोग को कुछ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करना होता है. घर खरीदना बहुत ही सस्ता है. क्वार्टरली मीन्स एवरी 3 month. क्वार्टरली मीन्स एवरी 3 month मीन्स ही हैड टू, इट मीन्स ही हैज़ टू पे इंस्टॉलमेंट्स एवरी 3 months, मतलब 3 महीने पे उसको इंस्टॉलमेंट पे पे करना होता था. ओनली लास्ट ईयर आई हैड अ $10 रेज. सॉरी, हैव यू गेट अ हाई रेज इन योर वेजेस बिल, क्या तुमने अपना जो वेजेस है, तुम्हारा जो मंथली इनकम है, वीकली इनकम है, वो तुम्हारा बढ़ा है? बिल सेज, ओनली लास्ट ईयर आई हैड अ $10 रेज. सिर्फ पिछले साल मुझे $10 ही बढ़ा था. ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली. सुसान सेज, ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, सच में ये कुछ भी नहीं है. वी आर एक्सपेक्टिंग $20 दिस क्रिसमस. आगे जो क्रिसमस आने वाली है उस पर हम लोग ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा आशा कर रहा हूँ कि $20 हम लोग का वेजेज जो है रेज करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. Aunt Polly, you see, we could never buy a car that way. Aunt Polly, now Susan से, Aunt Polly, you see, आपने देखा,
वी कुड नेवर बाय अ कार दैट वे, हम लोग इस तरह से कार नहीं खरीद पाते. बट नाउ वी कैन एंजॉय मोटरिंग फॉर ओनली $100 इन एडवांस एंड रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स. अब हम सिर्फ 100 एडवांस में एडवांस में पेमेंट किए $100 और कार जो है मेरे पास आ गई, और बाकी का जो पैसा है वो हम लोग इजी इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा कर देंगे. बिल, आई थिंक दैट न्यू कार, डिड यू बाय इट कैश डाउन? अंट पॉली सेज कि मैं सोचती हूँ कि तुमने जो नया कार है वो तुमने कैश डाउन पे लिया, मीन्स पूरा कैश पेमेंट करके तुमने कार को खरीदा है. नो, आई सी दैट द पियानो इज ऑल्सो बाउट ऑन इजी इंस्टॉलमेंट. Now let me prepare a cup of coffee for you, Aunt Polly. No, I see that the piano is also bought on easy installments. नहीं, मैं तो ये जो पियानो है वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा हुआ, इसका मतलब. नाउ सुशांत से, नाउ लेट मी प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, आंट पॉली. अब सुशांत कहती है अब मुझे आपके लिए एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए जाना है. Will, of course, will that. And the fridge. Just then Bill's iPhone ring. तभी क्या होता है, बिल का आईफोन रिंग बजता है. I am afraid and the Apple iPhone. Yes, next. I suppose all you own is this furniture. Well, no, actually these two tables are really ours. Aunt Polly says कि यहाँ पे जितना भी फर्नीचर है, मैं ऐसा सपोज करते ऐसा मानती हूँ कि यहाँ पे जितना भी फर्नीचर है वो सब तुम्हारा है, तुम्हारा अपना है. तो कहता नो, एक्चुअली दिस 2 tables आर रियली आवर्स. सुशांत सेज कि सिर्फ ये जो 2 टेबल है वो हमारा है, बाकी एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर somebody of this or that corporation. ओके, तो इस पे आंट पॉली गुस्सा होकर बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर somebody ऑफ दिस और दैट कॉरपोरेशन, और बाकी का जो है वो किसी न किसी कॉरपोरेशन का है. लिसन, देन आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर somebody's फर्नीचर. सुनो, अब मैं कि दूसरे के फर्नीचर पे बैठने वाली नहीं हो. आंट पॉली स्टैंड्स अप. आंट पॉली जो वो खड़ी हो जाती है. गुस्सा में बोलती है वो, एवरीथिंग यू हैव ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स, सारे के सारे तुम्हारे पास सब इजी इंस्टॉलमेंट्स में है. लेट मी सी हाउ मच इजी दे आर, मुझे देखने दो, मुझे समझने दो कि कितना इजी है तुम्हारा ये इंस्टॉलमेंट्स. टेल मी व्हाट इज़ द टोटल ऑफ ऑल योर इंस्टॉलमेंट्स यू हैव टू पे, मुझे ये बताओ कि तुम्हें टोटल कितना इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ता है, तुम्हें टोटल कितना इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ता है. प्लीज़ बी सीटेड, आंट पॉली. बिल रिक्वेस्टेड आंट पॉली, प्लीज़ बी सीटेड, आप कृपया आप बैठ जाइए. बिल पिक्स अ डायरी फ्रॉम द कॉर्नर टेबल एंड ओपन्स इट. बिल क्या करता है, एक कोने में पड़े डायरी को निकालता है, उसको खोलता है. विल एक्चुअली कम्स टू $147 पर वीक. डायरी देख के क्या बताता है कि $147 पर वीक इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है. नाउ आंट पॉली सेज गुड हेवेंस, एंड हाउ मच डू यू ब्रिंग होम एवरी वीक, और कितना कमाते हो, कितना लाते हो घर में एक वीक में. बिल से आई अर्न $110 पर वीक, मैं पर वीक जो हर एक सप्ताह $110 कमाता हूँ. आई ऑल्सो डू सम पार्ट टाइम जॉब फॉर $20 पर वीक, और मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ जिससे मुझे $20 पर वीक मिलता. एब्सर्ड मतलब गुस्सा में आंट पॉली बोलती है एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट, बेतुका और विवेकहीन, जो बिना सोच समझ के लिया गया कोई काम करता है तो उसको हम कहते हैं एब्सर्ड. जो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी स्टेप ले लेता है, कोई भी काम कर लेता है बिना तर्क वितर्क किए, उसको हम लोग कहते हैं एब्सर्ड. आंट पॉली गुस्सा में बोलती है
absurd. How can you pay $147 out of $130? तुम $147 कैसे पे कर लेते हो $130 में से? 130 में से तुम 147, 130 में से 147 कैसे पे कर लेते हो? And Polly continue. And your weekly household and other expenses, और जो सप्ताह में और जो घर का खर्च होता है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो कैसे होता है? नाउ सुसान सेज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, द रेस्ट ऑफ मनी वी बोरो फ्रॉम द बिग एप्पल कॉरपोरेशन, रेस्ट जो है अमाउंट जो बच जाता है वो हम बिग एप्पल कॉरपोरेशन से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, डेब्ट लेते हैं. They gladly loan us any amount to a written promise to pay back in installments. Bill says कि वो लोग जो है कौन, बिग एप्पल का वो कॉरपोरेशन वाले आसानी से लोन दे देते हैं एक रिटन प्रॉमिस पे कि हम ये जो लोन है उसको पे कर देंगे. What a vicious circle of installments for installments. Oh God, give the children a bit of wisdom. गुस्सा से बोलती है कौन, आंट पॉली. What a vicious circle of installments for installments. Vicious circle, a new term here. Vicious circle. Vicious circle means a situation in which one problem causes another problem, which then makes the first problem worse. Means vicious circle हम वैसे सिचुएशन को बोलेंगे, vicious circle हम वैसी सिचुएशंस को बोलेंगे जिसमें एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरा प्रॉब्लम होता है और दूसरा प्रॉब्लम की वजह से पहला प्रॉब्लम और भी ख़राब हो जाता है. ओके, तो इस तरह का जब सिचुएशन बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विशियस सर्कल. तो आंट पॉली गुस्सा में बोलती है, व्हाट अ विशियस सर्कल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर इंस्टॉलमेंट्स. मीन्स कर्ज के लिए कर्ज, कर्ज के पेमेंट के लिए कर्ज लेना, इंस्टॉलमेंट्स फॉर इंस्टॉलमेंट्स. ओ गॉड गिव दी चिल्ड्रन अ बिट ऑफ विजडम. हे भगवान, इन बच्चे को कुछ बुद्धि दे दो. ये बिल बोलता है, डोंट वरी आंट पॉली प्लीज़, आप चिंता मत करिए आंट पॉली प्लीज़, लाइफ गोज़ इन दैट वे, ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है. प्लीज़ सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर. सुसान कहती है आंट पॉली से कि आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए. आंट पॉली फील्स वीक एंड सिट डाउन ऑन द चेयर. वो थोड़ा सा मतलब एज्ड है, मतलब ओल्ड एज्ड है, तो कमज़ोर महसूस ना, वो बैठ गई. आंट पॉली लीप्स ऑन हर फीट. आंट पॉली लीप्स ऑन हर फीट, अपने पैर पे जैसे घुटना डाल के नहीं हम लोग लीप कर लेते उसी तरह से. चेयर ऑफ मिस्टर समबडी, गुस्सा में ही चेयर ऑफ मिस्टर समबडी, मतलब चेयर वो भी किसी और का. आंट पॉली यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं. बिल सेज, आंट पॉली यू लुक टायर्ड, आप थके लग रहे हैं. वुड यू लाइक टू ले डाउन, वुड यू लाइक टू लाई डाउन, आप थोड़ा लेटना चाहेंगे. आंट पॉली, नो आई एम गोइंग होम बैक, नहीं मैं घर वापस जा रही हूँ. लाई डाउन इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर समबडी, मैं वैसे बेड पे मतलब लेटूंगी जो किसी और का है. टेक इट ईजी, आराम से. वो कहता है, बिल सेज टेक इट ईजी, प्लीज़ आराम कीजिए. आंट पॉली, आई फील आई वुड बी बेटर ओनली एट होम, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं सिर्फ अपने घर पे ही अच्छा होऊंगा, मतलब घर पे ही जाके अच्छा फील करूँगा. आंट पॉली, वी विल पे इट बैक, आई विल डू सम मोर पार्ट टाइम, मतलब वो क्या आश्वासन देता है बिल आंट पॉली को कि मैं जितना भी इंस्टॉलमेंट्स है उसको पे कर दूंगा, इसके लिए मैं और भी पार्ट टाइम करने का, जॉब पार्ट टाइम वर्क करने का होगा तो मैं और भी पार्ट टाइम वर्क करूँगा. वेल इफ़ यू फील लाइक दैट, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आई विल ड्राइव यू देयर, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा. बिल सेज टू आंट पॉली, आई विल ड्राइव यू देयर, मैं आपको आपके घर तक अपने कार में छोड़ दूँगा. व्हाट, ट्रेवल इन अ कार दैट इज़ नॉट योर्स, क्या
वैसे कार में ट्रैवल करना जो कि तुम्हारा नहीं है। नो थैंक्स, आई विल टेक अ बस। नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। आंट पॉली इज़ ब्रीदिंग डीपली, जोर से सांस लेती है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड बिहेवियर, बाद में उस जाने से पहले उस दोनों से, किससे, बिल से और सुशांत से कहती है आंट पॉली, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड बिहेवियर, मैंने जो भी कुछ भी बोला, मैं तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली शॉक्ड टू फाइंड यू इन टोटल डेब्ट, मैं पूरी तरह से शॉक्ड हूँ तुमको ये देखकर कि तुम लोग टोटली डेब्ट में, तुम लोग टोटली कर्ज में हो। आई हैव नेवर अर्नड अ सेंट इन माई लाइफ, मैंने अभी अपने जीवन में कभी भी सेंट मीन्स पैसा, ए सेंट मीन्स एक भी पैसा मैंने अभी तक अपने जीवन में मतलब डेब्ट नहीं लिया। आंट पॉली ओपन्स हर हैंड बैग, उसके आंट पॉली के पास जो हैंड बैग है उसको खोलती है। आई बाउट एवरी थिंग कैश डाउन और आई डिड नॉट, मतलब वो उसको समझाती है कि मैंने जो कुछ भी खरीदा कैश टोटली कैश डाउन पे खरीदा या तो नहीं खरीदा। यू आर गुड आंट पॉली, बिल सेज यू आर गुड आंट पॉली, आप अच्छे। आंट पॉली गिव्स देम अ चेक, जाने से पहले आंट पॉली जो क्या करती है, एक चेक देती है। दिस इज अ लिटिल चेक फॉर यू, ये एक छोटा सा अमाउंट का चेक है। पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स सो दैट एटलीस्ट वन थिंग में बिकम रियली योर्स, ये एक छोटे से अमाउंट का चेक है, कम अमाउंट का चेक है। आप तुम में अपने सारे बिल में से ऐसे चीज़ों के लिए पे करना एक जो कि कम से कम एक सामान तुम्हारा अपना हो जाए, कम से कम एक सामान जो है तुम्हारा अपना हो जाए। थैंक यू आंट पॉली, सुशांत से थैंक यू आंट पॉली। आंट पॉली किसेस सुशांत ऑन हर फोरहेड। गुड बाय आंट पॉली, थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, आपने जो प्रेजेंट दिया, आपने जो गिफ्ट दिया इसके लिए थैंक्स। गुड बाय माई डियर, हु सेज गुड बाय माई डियर, आंट पॉली टू सुशांत एंड बिल्स। आई विल सी you to the bus anyway. And Susan looks at the check and exclaims with joy. Susan चेक को देखती है और खुश हो जाती है। तो उधर से पूछता है बिल, हाउ मच इज़ द चेक, कितने का है चेक। $50, बट विच बिल शुड आई पे ऑफ। $50, $50 का, लेकिन कौन सा बिल जो है हम इस चेक से पे करेंगे। दैट इज़ ग्रेट, वी कैन पे ऑफ नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑन द कार विथ इट। तो बिल कहता है कि इससे तो हम अपने कार का 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। बिल कम्स बैक, बिल वापस आता है। आई जस्ट फॉरगेट, Aunt Polly asked to pay off a bill which makes at least one thing really ours. Aunt Polly बोली थी कि इससे ऐसे बिल को पे करने के लिए, इससे ऐसे बिल को पे करने के लिए कि कोई एक सामान जो है वो मेरा हो जाए, हमारा हो जाए। आई थिंक फर्स्ट वी शुड गिव वन हाउस इंस्टॉलमेंट्स। और उधर से वो भी सुशांत भी अपना सजेशन देती है कि वो बोलता है कि नहीं, इससे कार का 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे। सुशांत कहते नहीं, घर का 1 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे। नाउ सुशांत सेज अगेन, बट एवरी आइटम हैज़ बीन बाउट ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो। हम लोगों ने जो कुछ भी सामान खरीदा वो कुछ ही महीने पहले खरीदा है। बट एवरी आइटम्स हैज़ बीन बाउट ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो। घर में जितना भी सामान है वो सब तो हम कुछ ही महीने पहले खरीदे। दे हैव अ लॉन्ग रो ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और सभी में बहुत ही ज़्यादा संख्या में इंस्टॉलमेंट्स बचा हुआ है। देन व्हाट टू डू, बिल सेज, तो अब क्या करना चाहिए। सुशांत सेज, लिसन द विंटर इज़ कमिंग, ठंड का जो सीजन है, विंटर इज़ कमिंग, वी डोंट हैव गुड कोट्स, हम लोगों के पास अच्छा कोट नहीं है ठंड से बचने के लिए। ओ यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। बट आंट पॉली सेड, सी सेड एटलीस्ट तक, लेकिन यहाँ पे भी जो बिल जो है, बिल कहता है कि लेकिन आंट पॉली तो कही थी कि कुछ ऐसा सामान खरीदने के लिए, ऐसे बिल के पेमेंट करने के लिए, कि ऐसे बिल को पेड करने के लिए कि जिससे कि वो सामान मेरा हो जाए। तो बीच में ही सुशांत बोलती है, सी सेड एटलीस्ट द कोट्स विल बी रियली आवर्स, कम से कम कोट तो हमारा हो जाएगा। दे बोथ हैव अ फेड लाफ,
दे बोथ हैव अ फेंट लाफ, दोनों के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ गई. This way you have read the story, and once again I am suggesting you to go through this chapter carefully and solve the exercise in your notebook and submit to the school. Thanks.